हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कुलदीप एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक अनाउंसमेंट है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। सो व्हाट इज़ द अनाउंसमेंट इज़ दैट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हैज़ रिलीज्ड इट्स एप्लीकेशन फॉर्म टू द स्टूडेंट्स दोज हू आर टारगेटिंग डिफरेंट कोर्सेज इनटू द क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। यस, तो 8th on December means yesterday itself the Christ University has released its application forms so that the students those who are targeting any program from the Christ University they can fill the application form. So the starting date is 8th of December and it will get end on 31st of May 2021. So approximately the examinations of Christ University will be held in the month of June itself. तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोसीजर क्या होगा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। आई विल बी शोइंग अ डेमो कि कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। सो गाइज वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स द स्क्रीन, टाइपिंग फर्स्ट द IP एड्रेस, द वेबसाइट नेम www.ncr.christuniversity.in. So this is the home page of the Christ University, and next we will be waiting to open the page. Okay, now the page has been opened and we will see what next is coming. Now there was the option to apply online, and we have reached to the page where we can apply online the application form. Let be the page is open. So here it is coming that new user registration. So guys, I have already login previously, so I will be directly entering into the my user ID and password. So the user ID will be, I am entering my password, my email ID and password which I have already generated. But for the new user registration, the person has to click here and he has to write his name according to the 10th mark sheet, then email ID, password, and then person has to confirm the password by retyping it, and then he will do registration here like this. So when he will do it registration, he will be again coming back on this website again, and the same page will open, and here the student will write the email ID which he has already entered. Like I am typing my one, KULDEEP. Now write down the CAPTCHA. See, my page is open now because I have already registered, so it is directly showing means it is directly showing my home page. So in the same way, if you will register first time and then you will again log in by the email ID and password you have registered, then you will be flashing on this page. Now it is showing application status in inbox, SMS, alert, and logout. This is a mail ID which you entered during the form filling, application form applying. And here now application में यहाँ पे जो आया है, प्लीज़ कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना एप्लीकेशन फॉर्म पहले से थोड़ा भर चुका हूँ, तो अब इसके बाद में मैंने जहाँ से छोड़ा था उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ. सो
here it is showing save password, so I will click it save, so that, and you can also click it on save so that you should not enter it again and again. Okay, now click here to complete application. I will click here, and simply what the things will be coming, that I will show you. Together the first page is like this: basic information, guidelines, terms and conditions, detailed application and payment. So the basic information is already done by me. I will just show you the things. So program type, it is already that you have filled previously: undergraduate program, then Bachelor of Business Administration, which you have selected previously. And then after this you will be entering your name and date of birth as per the 10th records, then gender, email ID, country, citizenship, like this. And then are you applying through overseas sponsor? No. Do you have Aadhaar card? If you don't have, then tick no, or else you can क्लिक ऑन येस. हैव यू एनरोल फॉर आधार? अगर नो लगाया है, और अगर नहीं अप्लाई किया तो नो कर सकते हैं. ब्लड ग्रुप आपका जो हो वो डाल सकते हैं. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में यस या नो, वो आपके उस पर है कि आपने कोई एक्टिविटी की है या नहीं है. सेकंड लैंग्वेज में अगर फर्स्ट इंग्लिश ले रहा है तो ये सेकंड आप हिंदी में डाल सकते हैं. फिर प्लेस, कंट्री, रिलीजन, सेक्शन, फ़ोन नंबर, मोबाइल, ये सब आपको फिल करना है. ठीक है, तो ये सब आप डाल देंगे. उसके बाद में अगर आपके पास पासपोर्ट है तो डाल सकते हैं. और ये एड्रेस, तो एड्रेस में जैसे मैंने थोड़ा सा डाला हुआ है हिंट के लिए, फिर आप यहाँ पे कर दोगे इज़ दैट परमानेंट एड्रेस एज सेम एज करेंट, देन आप येस कर दोगे तो ये एज इट इज़ ऊपर वाला एड्रेस भी नीचे वाले में ले लेगा परमानेंट में. फिर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएगी, पहले 10th की और उसके बाद 11th की. तो CBSE बोर्ड, फिर अदर जो स्कूल का नाम है जहाँ से पास आउट का वो डाल सकते हैं, वो कहाँ पे किस कंट्री में है, इंडिया डाल दोगे. फिर किस स्टेट में है वो डाल सकते हो, और कब आप पास करोगे, कितनी अटैम्प्ट में पास किया तो वो डाल दोगे. ऑब्टेन्ड मार्क्स और मैक्सिमम जितने सब्जेक्ट्स हैं आप उनको इनटू 100 करके, जैसे 5 सब्जेक्ट्स हैं 12th में तो 500, और जितने आपके ऑब्टेन्ड हुए वो मार्क्स लिख सकते हैं. फिर ऐसे 11th का फिल करोगे. देन पेरेंट्स डिटेल्स, पेरेंट्स का नेम, उनकी एजुकेशन, और उसके अलावा फिर आपका ऑक्यूपेशन में ये थोड़ा गड़बड़ था, यहाँ पे मैंने आप एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन है तो वो सब आप लिख सकते हैं. ठीक है, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस प्रोफेसर, वट एवर जो भी प्रोफेशन है आपके फादर का वो सब आप डाल के, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ, अगर कोई से फादर के बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन डाल सकते हैं, अदरवाइज एंटरप्रेन्योरशिप में आप डाल सकते हैं एंटरप्रेन्योर. सेल्फ बिजनेस है तो फिर उनका ये सारा आपका ईयरली इनकम, और फिर उसके बाद आपका इंडियन रुपीज़ में ये सारा आप कर लोगे. मेल आईडी वगैरह सारा डाल दोगे. उसके बाद में मदर्स का भी डिटेल इसी तरीके से आएगा. उसके बाद एड्रेस, पेरेंट्स का एड्रेस यहाँ पर आएगा. उसके बाद आप सबमिट कर दोगे. ठीक है, नाउ इट इज़ नॉट टेकिंग माई बिकॉज इट इज़ आई हैव लेफ्ट सम ऑफ द थिंग्स. ठीक है, जब इसके बाद आप करोगे तो डिटेल एप्लीकेशन एक बार आप देख पाओगे अपना. एंड आफ्टर दैट you will proceed, means whatever the options your application form is asking, you have to fill that, and then step by step basic guidelines, terms, conditions टिक करके yes I agree करके डिटेल एप्लीकेशन एक बार शो होगा आपको. उसके बाद आप सीधे पेमेंट पे चले जाओगे. पेमेंट पे आप अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं. आपके पास अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए ताकि OTP आए, और OTP डालने के बाद में आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा. जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा, आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर 9 डिजिट का आपके स्क्रीन पे शेयर हो जाएगा. वो आप उसको आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, वो ऑप्शन में आएगा प्रिंट के ऑप्शन के साथ में, ताकि आप अपने फर्दर एडमिशन रेफरेंस के लिए रख सकते हैं. ठीक है, दिस इज द होल प्रोसीजर. ठीक है, फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग ऑफ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी. उसके बाद में फिर मैं इसको अगर बैक करूँगा तब लॉग आउट कर सकते हो. तो ये सारा प्रोसीजर था क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलिंग का.
सो आई होप इससे थोड़ी आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे फॉर्म फिल करना है। उसके बाद जितने भी फॉर्म्स आगे निकलेंगे तो आई विल ट्राई टू शो यू अ डेमो फॉर दैट। एंड इसकी लास्ट डेट अभी 31 मई है, तो यू कैन फिल। बट एक सजेशन ये रहेगा कि अगर आज से फॉर्म या कल से फॉर्म रिलीज़ हुए हैं तो आप इसको विद इन द फर्स्ट मंथ भर दें, क्योंकि जैसे जैसे आपकी चॉइसेस फिल होती चली जाएंगी, आई मीन जितना आप लेट करोगे उतनी आपकी एप्लीकेशन एग्ज़ाम देने की चॉइसेस दूर चली जाएंगी। जैसे आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है आपको पेपर दिल्ली एनसीआर में देना है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट कि मुझे पहला वाला जो प्रेफरेंस है दिल्ली में मिले। तो अगर ऐसे करके जिन बच्चों ने पहले भर दिया होगा उनकी प्रेफरेंस उनको पहले मिल जाएगी, और फिर जितने लेट बच्चे फॉर्म भरेंगे उनको प्रेफरेंस वो ना मिल के दूसरे दूर की लोकेशंस मिलेगी। तो सजेस्टेबल यही है कि आप ज़्यादा डिले ना करके विद इन 15 और 30 डेज़ में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें, ताकि नियरेस्ट लोकेशन आपको पेपर के लिए मिल सके। करेक्ट? ओके, तो अब स्पेशली कौन कौन से फॉर्म आप भर सकते हैं। जैसे अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं स्पेशली, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले तो ये बता देता हूं मैं कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के 5 कैंपसेस हैं, 3 बेंगलोर में हैं, एक एनसीआर में और एक पुणे लवासा में है। तो बीबीए का ऑप्शन है मैनेजमेंट में, बहुत अच्छा है। बीबीए ऑनर्स है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, बिजनेस एनालिटिक्स है, फिनटेक ऑनर्स है, फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, बैचलर ऑफ ह्यूमन होटल मैनेजमेंट है। उसके अलावा जो बच्चे लॉ करना चाहते हैं उनके लिए BLLB, BBA, LLB दोनों ऑप्शंस हैं, तीनों कैंपसेस में, एनसीआर, बेंगलोर एंड पुणे, एनसीआर, बेंगलोर एंड पुणे। बीकॉम कर सकते हैं बच्चे, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, ये भी प्रोग्राम है। कंप्यूटर लाइन में किसी को फॉर्म फिल करना है तो BCA का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये सारे, और जो लोग BA हैं, BA आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के, तो इकोनॉमिक ऑनर्स, बीकॉम, कम्युनिकेशन मीडिया, साइकोलॉजी ऑनर्स दोनों प्रोग्राम हैं। तो ये सारे फॉर्म्स हो गए आपके क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के। इसके बाद में अगर आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल जानना हो तो मैंने ऑलरेडी इसकी एक वीडियो पहले से बना रखी है, तो आप उसको पूरा देख सकते हैं कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का क्या कैंपस है, क्या क्या कोर्सेज हैं, कितनी फ़ीस है, प्लेसमेंट क्या है, सबसे डिटेल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है, तो आप इसको एक बार जाकर देख सकते हैं। सो थैंक्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप जो भी एस्पिरेंट्स हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के, तो वो दिल्ली में भी अप्लाई कर सकते हैं, पुणे में भी कर सकते हैं और बेंगलोर में भी कर सकते हैं। तो यू आर हैविंग गुड नंबर ऑफ सीट्स एंड गुड नंबर ऑफ कैंपसेस एज वेल। तो मेन वैसे तो कैंपस बेंगलोर का है, बट ऑल कैंपसेस आर गुड। तो अभी गाज़ियाबाद में लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ था, तो दे आर ऑफरिंग ऑल द प्रोग्राम्स ऑलमोस्ट। BBA भी है, BLLB भी है, BCom LLB भी है एंड अदर प्रोग्राम्स एज वेल। सो थैंक्स गाइज, आगे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे। थैंक्स अ लॉट।